آپ سب بیٹھ سکتے اپنی جگہوں پہ. میری درخواست ہے بھائی دائم سے سامنے آ کر قرآن کے کلام کی تلاوت کریں. آئے میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیو اس کا 11 باب اور اس کی 17 سے 34 آیت. دعوت کے زندہ پاک کلام میں سے پہلا کرنتھیو اس کا 11واں باب اس کی 17 سے 34 آیت تک. دعوت کے زندہ پاک کلام میں کچھ یوں مفہوم ہے: لیکن یہ حکم جو دیتا ہوں اس میں تمہاری تعریف نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہارے جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے. کیونکہ اول تو میں یہ سنتا ہوں کہ جس وقت تمہاری کلیسیا جمع ہوتی ہے تو تم میں تفرقے ہوتے ہیں، اور میں اس کا کسی قدر یقین بھی کرتا ہوں، کیونکہ تم میں بدعتوں کا بھی ہونا ضرور ہے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مقبول کون ہے. بس جب تم باہم جمع ہوتے ہو تو تمہارا وہ کھانا عشاء ربانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کھانے کے وقت ہر شخص دوسرے سے پہلے اپنا عشاء کھا لیتا ہے، اور کوئی تو بھوکا رہتا ہے اور کسی کو نشہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کھانے پینے کے لیے تمہارے گھر نہیں، یا خدا کی کلیسیا کو ناچیز جانتے ہو، اور جن کے پاس نہیں ان کو شرمندہ کرتے ہو. میں تم سے کیا کہوں؟ کیا اس بات میں تمہاری تعریف کروں؟ میں تعریف نہیں کرتا، کیونکہ یہ بات مجھ کو خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے، اور میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. اس واسطے جو کہیں نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے خداوند کے بدن کو نہ پہچانتے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہے اور بہت سے سو بھی گئے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں. بس اے بھائیو، جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو. اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھا لے، تاکہ تمہارا جمع ہونا سزا کا باعث نہ ہو، اور باقی باتوں کو میں آ کر درست کروں گا. آمین. آمین. آج جب ہم شریک ہیں پاک جمعرات کی عبادت میں، تو آج ہم خوشخبری کو یاد کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، مسیح کے کام کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. تو خوشخبری بارہا سنائی جاتی ہے، بارہا بتایا جاتا ہے. تو بہت لوگ کبھی کبھار میرے سمیت جو ہے کبھی کبھار ہم خوشخبری سے بور ہو جاتے ہیں. ہم بولتے ہیں ایک ہی بات بار بار کی جا رہی ہے، ایک ہی بات جو ہے بار بار سب کو سمجھائی جا رہی ہے. تو خوشخبری ہمیں ہر روز یاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اسے ہر روز بھول جاتے ہیں. مارٹن لوتھر نے کہا تھا خوشخبری، اور کسی آدم نے کہا تھا، بالکل اسی طرح نہیں کہا تھا پر اسے ملتی جلتی بات کی تھی، کہ خوشخبری اتنی سادہ ہے کہ بچہ بھی اسے سمجھ سکتا ہے، پر خوشخبری اتنی گہری ہے کہ ایک عالم پوری زندگی اپنی گزار دے تو پھر بھی اس کی گہرائی کو وہ ناپ نہیں سکتا. ہم بھی خوشخبری کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے. مجھے 10 سال ہو گئے خوشخبری کو جانتے ہوئے اور خوشخبری کے بارے میں پڑھتے ہوئے، پر پوری طرح سے خوشخبری کی گہرائی کو میں بھی نہیں جان پایا. تو انسانی ذہن ہے، انسان جو ہے وہ خدا کے بڑے کام کو کس طرح سے گہرائی سے جان سکتا ہے. یہ خدا ہی کا فضل ہے، جس حد تک ہم جانتے ہیں اس حد تک ہم جانتے ہیں. یہ خدا کا بڑا فضل ہے کہ خدا نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، کہ خدا کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم اس وقت میں خدا کی خوشخبری کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، تو مطلب یہ کافی بار میں کلام سنا بھی چکا ہوں اسی ٹاپک پہ، مسیح کے کفارے کے اوپر اور جو نیا عہد ہے اس کے اوپر بارہا کلام سنا بھی چکا ہوں. پر پھر خدا کے فضل سے خدا نے مجھے اس بات میں مسیح کے کفارے کے کام میں خوشی بخشی، جو میں آپ کے ساتھ بانٹنے کے لیے آ جائیں. تو ہم جب آج
इस इबादत में शरीक है और कलाम सुन रहे हैं। तो अभी जो है हम 2 अहदों को देखेंगे, ठीक, 2 अहदों को देखेंगे। पहला जो अहद होगा वो पुराना अहद होगा और नए अहद दोनों को देखेंगे। इसके लिए मैं आपके साथ एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, पहला करंथियों 11 बाब उसकी 25 आयत। पहला करंथियों 11 बाब उसकी 25 आयत। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। तो यहाँ पर एक अहद का जिक्र चल रहा है। जो कौन सा अहद है? जो नया अहद है। किस में ये नया अहद है? मसीह के खून में ये नया अहद है। तो नया अहद जो है वो मसीह के खून की वजह से बनता है और मसीह का खून जो है हमें उस नए अहद की याद करवाता है। अब ये नया अहद है और पुराने अहद में जो है क्या हुआ था, पुराने वक्त में क्या हुआ था, उस वक्त में भी एक कुर्बानी की गई थी। ठीक, आज की शाम जो है यीशु मसीह फसह के वक्त में अपने शागिर्दों के साथ मौजूद थे और वो जो थे गोश्त खाते हैं और उनके साथ जो है गीत गाते हैं और अपने मसलूबियत का जिक्र करते हैं। कि उसी वाक़ये का जिक्र हमें मिलता है पहला करंथियों 11 बाब उसकी 25 आयत में, जब यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे खून में नया अहद है। ये उस वक्त का जिक्र चल रहा है, पर इसी रात को एक और काम हुआ था पुराने अहदनामे में। पुराने अहदनामे में खरूज 12 बाब में एक फरिश्ते ने आना था और उसने देखना था लोगों की चौखटों, घर की चौखटों को। जिस घर की चौखट के बाहर बर्रे का खून लगा होना था उस घर के पेलोठों ने बच जाना था, पर जिस घर के चौखट के बाहर वो खून नहीं लगा होना था उस घर के पेलोठों ने मर जाना था। तो उसी ईद की यादगारी में यीशु मसीह ने भी ये यादगार के तौर पे मनाया, पर यीशु मसीह ने उस ईद को तब्दील कर दिया। उस ईद को किस तरह से तब्दील किया? जब यीशु मसीह ने वो प्याला उठाया तो नए अहद का इकरार किया, नए अहद का इकरार किया जो यीशु मसीह अपने खून से बांधने वाले थे। अगले दिन यीशु मसीह अपना कफारा देने वाले थे। यीशु मसीह ने उस कफारे का इकरार जो है, उस जो नजात के काम का जो इजहार है, इकरार जो है इस वक्त में किया और उस प्याले को ठहरा दिया इस बात के लिए कि ये प्याला जो है यादगार के तौर पे रहे। अब वो पुराना जो बर्रा जो है जिसका खून जो है लगाया जाना था दरवाज़ों की चौखटों पे, उसने जिस्मानी मौत से, आर्जी मौत से लोगों को बचाना था। जिस शख्स ने उस बर्रे का खून लगाना था बाहर घर की चौखट पे, उसने आर्जी मौत से बचाना था। तो वो आर्जी कुर्बानी थी, पर मसीह जो है वो अब्दी कफारा देता है जो हमेशा की निजात के लिए काफ़ी पूरा और कामिल है। हम देख सकते हैं कवाला पहला करंथियों 5 बाब 7 आयत। पुराना कबीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनांचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान था। ठीक, तो हमारे फसा का बर्रा मसीह जो है वो कुर्बान हुआ है। यीशु मसीह को फसा का जो है बर्रा कहा गया है इस हवाले में। तो यही बात है कि फसा का बर्रा जो था उस टाइम पे भी कुर्बान हुआ, पर यीशु मसीह की तरफ वो इशारा कर रहा था। वो आर्दी खलासी मुखलसी देकर लोगों की जान को बचाकर आने वाले मसीह के कामिल कफारे की तरफ वो हमारा इशारा कर रहा था। हम एक और वाला देख सकते हैं इब्रानियों 10 बाब उसकी हम 2 और 3 आयत देखेंगे। वरना उनका गुज़राना मौकूफ ना हो जाता, क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनहगार नहीं ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियाँ साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुर्बानियों का जिक्र है जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए की जाती थी पुराने अहदनामे में। और वो
जो थी कुर्बानियाँ बार बार की जाती थी, और वो किस चीज़ की याद दिलाती थी? गुनाह की याद दिलाती थी। वो गुनाह की याद दिलाती थी कि फिर से ये कफ़ारा होगा, फिर गुनाह किया जाएगा, फिर ये कफ़ारा होगा, बारहा ये कफ़ारा किया जाएगा। वो कुर्बानियाँ याद करवाई जाती थी, और ख़ास जो है कफ़ारे के दिन जो है ये कुर्बानी की जाती थी गुनाहों के लिए। जब काहिन जो था उस बर्रे के सर पर जो है हाथ रख कर कौम के गुनाहों का इकरार करता था, तो वो जो था उसको फिर जो है कुर्बान किया जाता था उस बर्रे को। तो वो जो थी बारहा करने वाली थी। कभी उसकी ज़हन में ये सोच नहीं होगी कि ये आखिरी पूरा और कामिल कफ़ारा होगा, बस ये कर दिया और इसके बाद ज़रूरत किसी और कफ़ारे की नहीं पड़ेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो उसके ज़हन में ये था कि अभी किया और फिर बार बार यही कफ़ारा होगा। तो कफ़ारा किस चीज़ को जाहिर करता है? कफ़ारा इस चीज़ को जाहिर करता है कि कोई शख्स भी कामिल नहीं। ठीक, कफ़ारे की ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है? कफ़ारे की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जो लोग कामिल ना हो। कफ़ारा किस चीज़ का होता है? कफ़ारा गुनाह के लिए किया जाता है। अगर हम कामिल होते तो हमें कफ़ारे की ज़रूरत थी ही नहीं, पर चूंकि हम कामिल नहीं थे तो कफ़ारे का एक सिस्टम ठहराया गया जो वक्ती तौर पे गुनाहों को ढांपता था। कफ़ारे का जो लफ्ज़ पुराने अहदनामे में इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है ढांपना, मतलब कि वो जो है गुनाहों को ढांपता था, गुनाहों को ख़त्म नहीं करता था। और वो जो कफ़ारे थे तो पूरे कामिल और काफ़ी नहीं थे। अब जो वो कफ़ारे थे उनको इब्रानियों की किताब में साये कहा जा रहा है, साये के तौर पर थे। वो साया थे। साया क्या शख्सियत होते हैं? नहीं, साया जो है शख्सियत का अक्स होते हैं, शख्सियत की एक तस्वीर होते हैं, पर वो शख्सियत नहीं होते। तो साये जो है वो सिर्फ कफ़ारे की तरफ जो शख्सियत है उसकी तरफ हमारा इशारा करते हैं, हमारे ज़हन और हमारी सोचों को लगाते हैं। तो ये जो थे कामिल नहीं थे और इनका मौकूफ़ होना ज़रूरी था। और इनका बंद हो जाना जो है वो किस तरह होना था? वो मसीह के खून के वसीला से होना था, मसीह की वजह से होना था। इब्रानियों 10 बाब में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि ये जो कफ़ारे थे किस चीज़ की याद दिलाते थे? गुनाह की याद दिलाते थे। तो ये कफ़ारे नामुकम्मल थे, ठीक, कामिल नहीं थे, गुनाह की याद दिलाते थे। जो करीब आते थे लोग उनको ये लोग कामिल नहीं करते थे। ये कफ़ारे जो थे जो बारहा किए जाते थे। पर हम देख सकते हैं अब नए अहद के बारे में, जो खुदा ने नया अहद बांधना था पुराने अहदनामे में ही हमें उसका जिक्र मिलता है। नए अहद का जिक्र हमें पुराने अहद में मिलता है। यिर्मयाह की किताब 31 बाब उसकी 31 से 34 आयत तक। यिर्मयाह की किताब 31 बाब 31 से 34 आयत तक। देख वो दिन आते हैं, खुदान फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगीरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा अगरचे मैं उनका मालिक था, खुदावन फरमाता है। बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, खुदावन फरमाता है। मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि
खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। तो नए अहद में क्या था? नए अहद में ये बात खुदा करता है कि मैं उनके बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। खुदा उनकी बदकारी को और उनके गुनाह को याद ना करेगा और बख्श देगा। ये खुदा का बड़ा काम था जो खुदा नए अहदनामे में करने वाला था। नए अहदनामे में खुदा ये काम करने वाला था, अपने लोगों के लिए उनके गुनाहों को वो बख्शने वाला था। तो ये कफारे जो थे कामिल काफ़ी नहीं थे, पर मसीह का कफारा जो आने वाला था वो जो है हमें इस बात की याद दिलाता है कि माफ़ी की याद दिलाता है। जो यीशु मसीह ने जब प्याला लिया तो कहा, ये मेरा खून का वो अहद है जो बतेरों के गुनाहों के लिए बहाया जाता है, कि बहुतों की गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है, कि गुनाहों की माफ़ी के लिए वो बहाया जाता है। तो जब उस प्याले को उठाया जाता है तो वो किस चीज़ की याद दिलाता है? माफ़ी की याद दिलाता है। और जो पुराने जो कफारे थे वो गुनाह की याद कराते थे कि बारहा फिर गुनाह होगा और ये जो है कुर्बानी फिर करनी पड़ेगी। अब ये फ़र्क था। अब हम कामिल कफारे को जानने की कोशिश करते हैं, मसीह के कामिल कफारे को। इब्रानियों 10 बाब उसकी 14 क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाप किए जाते हैं। आमीन। तो उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से, ठीक है, हमेशा के लिए कामिल कर दिया है। ठीक, हमें दे दी है और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया है, मर गया है, दफन हुआ है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। तो जब मसीह ने कहा कि तमाम हुआ, तो खुदा का जो कामिल इरादा था और मसीह का जो कफारा था वो कामिल था, वो पूरा हुआ। और मसीह के उस कामिल कफारे के वसीला से गुनाहगार लोग कामिल होते हैं। लिखा होगा ना, उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है। और ये कामिलियत कैसी है? ये कामिलियत ऐसी नहीं है कि आज मसीह के कफारे ने मुझे कामिल किया है तो 10 दिनों के बाद जो हूं मैं नाकामिल हो जाऊंगा और ये जो है बस खत्म हो जाएगा, बल्कि लिखा हुआ है कि हमेशा के लिए कामिल कर दिया। तो मसीह पर जो ईमान लाते हैं वो कभी भी अपनी निजात को नहीं खो सकते हैं। खुदा का रूह उनके अंदर रहता है और खुदा का रूह उन्हें मसीह के जलाल के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए मदद करता है और उन्हें मसीह की तरह बनाता जाता है और वो पाक होते जाते हैं, पर वो हमेशा के लिए कामिल किए गए। तो हमने क्या बात की? कामिल लोग खुदा की दूरी में मकबूल ठहरते। कामिलियत कहाँ से है? कामिलियत मसीह के कफारे के बायस ही है सिर्फ, और वही कफारा हमें खुदा के दूर में मकबूल ठहरा सकता है। और यहाँ पे लिखा है 10वीं आयत में, उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। कि मसीह ने एक ही बार जो है अपने आप को कुर्बान करके हमें पाक कर दिया है। ठीक, तो दो बातें, हम पाक किए जा रहे हैं और हम पाक हो गए। खुदा ने हमें पाक ठहरा दिया है मसीह के कफारे के वसीला से, पर हम गुनाह कर रहे हैं, गुनाह हमसे होते हैं, पर खुदा उनसे भी हमें पाक कर रहा है। तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर मिलती है। और 14वीं आयत में लिखा हुआ है, जो पाक किए जाते हैं, कि जो पाक किए जाते हैं। प्रोसेस का जिक्र चल रहा है कि जो पाक किए जाते हैं, कामिल हो गए हैं पर पाक किए जा रहे हैं। तो ये है हमारे समझ से बाहर बात कि खुदा का फजल कैसे हो सकता है। तो हमने बात की सिर्फ कामिल लोग आसमान पर खुदा की बादशाही में जाते हैं। रहब फाशा कामिल, यीशु मसीह के साथ जो वो खड़ा था डाकू जो सलीब पर मौजूद था, वो कामिल,
वो औरत जो पानी भरने के लिए आई थी, जिसके 5 शौहर कर चुकी थी वो, और जिसके साथ वो अभी मौजूद थी, उसका शौहर नहीं था, पर मसीह पर ईमान लाने के वसीला से वो कामिल। तो कामिल लोग जन्नत में जाते हैं, इनके बदी से हम वाकिफ हैं, पर खुदा के फजल के वसीला से ये लोग जन्नत में जाते हैं, क्योंकि मसीह का कफारा ही हमें खुदा के ज़ुर में मकबूल ठहराता है। इनको किसने खुदा के ज़ुर में मकबूल ठहराया? मसीह के कफारे, जो पूरा कामिल और काफ़ी और जिसमें कोई कमी नहीं। कैसी बात है। तो ये जो प्याला जो है हमें 3 चीज़ों की याद दिलाता है, 3 चीज़ें करने पे हमें मजबूर करता है। फिर हम निकाल सकते हैं 1 कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 26 आयत। लिखा हुआ है 26वीं आयत में, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आ जाए। तो हम क्या करते हैं? मसीह की मौत का इजहार करते हैं, मसीह की मौत का इजहार करते हैं। मसीह ने जो काम किया है उसका इजहार करते हैं जब तक वो ना आ जाए। तो इसमें हम ये समझते हैं कि मसीह की मौत का ही नहीं, मसीह के मुर्दों में से जी उठने का भी करते हैं हम इजहार, क्योंकि वो आ फिर किस तरह सकता है वापस अगर वो मुर्दों में से जी नहीं उठा। तो हम जो है इस चीज़ का इजहार करते हैं और हम यादगारी के तौर पर भी इसको करते हैं। लिखा हुआ है 24वीं आयत में, 24वीं आयत के आखिरी से हम लिखा है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। हम जाहिर करते हैं मसीह की कफारे को और हम जो है इसको याद भी करते हैं, मसीह के उस कामिल काम को याद करते हैं। अब ये बात है कि हमें बाकायदा किसी स्टैचू की ज़रूरत नहीं, ठीक जिस तरह होता है सलीब का स्टैचू बना, सलीब पर स्टैचू बना होता है और उसके ऊपर से खून निकल रहा होता है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो दूसरे हुक्म को तोड़ना है। तो यीशु मसीह की आपको तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, तो वो यीशु मसीह है भी नहीं, पहली बात। तो जो है जब हम बात करते हैं कि उस रोटी को जो तोड़ना है और वो जो प्याला है वो यादगारी है, वो जाहिर करता है कि यीशु मसीह का बदन जो है तोड़ा गया और यीशु मसीह का खून जो है वो हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया। हम इकरार करते हैं, हम जाहिर करते हैं उस कुर्बानी को और हम उसको याद भी करते हैं। ये काम है जो होता है जब हम उस प्याले में और उस रोटी में शरीक होते हैं। और फिर हम यीशु मसीह के खुदावंद होने का भी इकरार करते हैं। लिखा है 23वीं आयत में, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली। तो हम मसीह के खुदावंद होने का भी इकरार करते हैं। यहाँ पर दोनों बार यीशु मसीह को खुदावंद कहा गया है, ऊपर आयत के पहले हिस्से में भी और दूसरे हिस्से में भी यीशु मसीह को खुदावंद कहा गया है। अब देखने वाली बात है, कल यीशु मसीह ने मसलूब होना है, पर आज यीशु मसीह उस रोटी को तोड़कर इजहार करते हैं और जाहिर करते हैं, उस कल जो काम होने वाला है उसका इकरार करते हैं। तो यीशु मसीह अपने खुदावंद होने को जाहिर करते हैं। यीशु मसीह खुदावंद जब है तो यीशु मसीह का कुल इख्तियार है, तमाम तर इख्तियार यीशु मसीह के पास मौजूद है। यीशु मसीह के कल जो काम होने वाला था उस इरादे को ना शैतान रोक सका, ना फरीसी रोक सके, ना पैंतुस पिलातुस रोक सका। यीशु मसीह ने अपना बदन जो है खुद दिया, ठीक, यीशु मसीह ने अपना बदन खुद दिया। यीशु मसीह ने कहा था कि कोई मेरी जान नहीं लेता, ठीक, मैं आप अपनी जान देता हूँ। तो यीशु मसीह अपनी जान खुद देने के लिए चाह रहे थे। यीशु मसीह ने अपना बदन खुद तोड़वाया। यीशु मसीह का पूरा इख्तियार था उन रोमियों पे, ठीक, उन रोमियों पे, उन फरीसियों पे, उन यहूदियों पे जो यीशु मसीह के बारे में कह रहे थे कि इसे मसलूब किया जाए। तो हम यीशु मसीह के खुदावंद होने को और यीशु मसीह के इख्तियार को
देख सकते हैं इस सारी चीज़ में भी कि यीशु मसीह ने वो रोटी तोड़ी और वो प्याला लिया। तो ये जो है हमें ये चीज़ याद करवानी चाहिए, यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह के कफ़ारे को याद हमें करवाना चाहिए। और ये वक्त होता है कि हम सोच सकें अपनी ज़िंदगी के बारे में, ठीक। जब हम इस रोटी में और इस प्याले में शरीक होते हैं, मसीह के कामिल कफ़ारे को याद करते हैं, तो इसको हमें अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी गौर करवाना चाहिए। क्योंकि लिखा हुआ है 27वीं आयत में, पहला कुरिन्थियों 11:27 आयत, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सज़ा पाएगा। तो ये अपने आप को आजमाने का वक्त भी होता है कि हम अपनी जांच पड़ताल करें कि हम क्या मतवातर गुनाह में ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम गुजार रहे हैं तो हमें तौबा करने की ज़रूरत है और हमें उस गुनाह में से निकलने की ज़रूरत है। और अगर हम इसमें शरीक होते हैं तो इस खाने पीने से हम सजा पाएंगे। हम ये बात करते हैं कि गैर ईमानदारों को तो लेना चाहिए ही नहीं, पर मसीह ईमानदार होते हुए भी हमें अपनी जांच पड़ताल करनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि जब हम ले रहे होते हैं शेरबानी, आप में से बहुत से लोग हंस रहे होते हैं, जो कि आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आपको उस वक्त में मसीह के कफ़ारे के बारे में सोचना चाहिए और आप अपनी ज़िंदगी की पर गौर कर सकते हैं कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, कि मैं जो हूँ अपनी ज़िंदगी क्या मतवातर बदी में तो नहीं गुजार रहा, क्या मैं गुनाह में फंसा तो नहीं हूँ। तीसरी आयत में लिखा हुआ है, इसी सबब से तुम में बथेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। तो खुदा फिर जो है, अगर हम इसमें लाइक तौर पे शरीक नहीं होते तो खुदा जो मुख्तलिफ तौर पे चीज़ें सजाएँ यहाँ पे बताई गई हैं कि बीमारी का जिक्र मिलता है, यहाँ तक कि हम दुनिया के साथ जो है सजावार ना ठहरे, खुदा क्या करता है, मार भी देता है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सो भी गए। तो खुदा जो है इस बात को कितना सीरियस लेता है, ठीक, मसीह कितना सीरियस लेता है। अब इन लोगों के लिए, करंथियों के लिए यह बात थी। करंथियों में जब वो लोग आते थे 1555 से 1558 के दरमियान में काफ़ी रिफॉर्मर्स जो है मरे, गालबन 288 रिफॉर्मर्स मरे, और ये लोग जो मरे इनको जलाया गया। इनको क्यों जलाया गया? इनको इस वजह से जलाया गया क्योंकि वो रोमन कैथोलिक तालीम को नहीं मानते थे। रोमन कैथोलिक तालीम क्या थी कि जब वो रोटी ली जाती है और वो प्याला लिया जाता है तो वो यीशु मसीह का बदन और खून बन जाते हैं। यीशु मसीह का कफारा, कुर्बानी फिर से होती है। ये रोमन कैथोलिक तालीम है और वो उसको कुर्बानी कहते हैं। तो बोलते हैं ये कुर्बानी फिर से होती है। तो जब इन लोगों ने कहा कि हम इसको नहीं मानते तो उन लोगों को जला दिया गया। इसमें काफ़ी नाम आपने सुने भी होंगे, जॉन रॉजर्स, जॉन हूपर, निकोलस रिडली, ह्यू लैटिमर, ये सब थे। ठीक, इन सब ने अपनी जान किस वजह से ली कि दी कि वो इस बात को मानते थे कि ये मसीह का कफारा फिर से नहीं हो रहा, ये मसीह के कफारे को जाहिर करता है पर मसीह का कफारा फिर से ये नहीं है। तो ये संजीदा बात है। उन लोगों ने इस तालीम के पीछे अपनी जानें दी हैं और लोग जो है इसको बड़ा हल्का लेते हैं, बड़े मजाक में लेते हैं और छोटी चीज जानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर उन लोगों ने उस वक्त में वो अपनी भी जानें ना दी होती उन लोगों ने, तो हम तक भी ये तालीम ना पहुंचती। क्योंकि बरसगीर में किन लोगों ने मसीह के कलाम को फैलाया? आने वाले कौन थे? यही प्रोटेस्टेंट लोग थे। ठीक, जिन लोगों तक ये तालीम इन लोगों के वसीला से, इनकी कुर्बानियों के वसीला से मिली। तो हमें इस बात को बिल्कुल जो है हल्का नहीं लेना चाहिए। पर इस सारी बात में हम एक अपनी जिंदगी के ऊपर भी गौर कर सकते हैं कि बेशक हम अपने गुनाह के ऊपर गौर करते हैं जब हम इस कफ़ारे की यादगार में शरीक होते हैं। ठीक, हम इस कफ़ारे की यादगार में जब शरीक भी हो रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी में खुशखबरी की क्या अहमियत है। मसला एक रोटी को खाने का और एक प्याले में से वो जो है मैं पीने का नहीं था। ठीक, मसला किस बात का है? मसला जिसकी वजह से इन लोगों ने भी जान दी, मसला खुशखबरी का है। ठीक, वो खुशखबरी के बारे में क्या जानते थे, क्या समझते थे कि मसीह का कफारा एक ही बार कामिल, पूरा और काफी है। 12 आप पढ़ सकते हैं, इब्रानी के 10 बाब में लिखा हुआ है, एक ही कफारा कामिल करता है। ये बात है कि बार बार वो एक ही कफारा क्यों बोले जा रहे हैं कि दे दिया गया है, ये पुराने मौकूफ होगी। क्यों वो कहता है कि इसके बाद ये कफारा नहीं होगा? यीशु मसीह ने क्या कहा? तमाम हुआ। पर रोमन कैथलिक आज भी इस बात को नहीं मानते हैं कि मसीह का कफारा कामिल, पूरा और काफी था। वो कहते हैं, आज भी वो इसी तालीम को मानते हैं कि वो यीशु मसीह की जो रोटी है वो यीशु मसीह का बदन बनता है, और वो जो प्याला है उसमें जो शीरा है वो यीशु मसीह का खून बन जाता है। और वो इसी तालीम को मानते हैं और बोलते हैं कि मसीह का कफारा फिर से होता है। तो मसीह का कफारा उनके लिए पूरा, कामिल और काफी नहीं। बात यह है कि पिछले साल एक पेपर आया, उसके अंदर लिखा हुआ था, इंटेलिजेंसेस का पेपर था, उसमें लिखा हुआ था कि आपने मुख्तलिफ जगहों पर जाना है और मुख्तलिफ दुआएं करनी है। अगर आप मुख्तलिफ दुआएं करेंगे और मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे तो आपको ये पेपर मिल जाएगा, जिसके वसीला से आप जब मरेंगे तो उसके बाद आप उस सजा वाली जगह पे नहीं जाएंगे, आप सीधा जन्नत में जाएंगे। उनके नज़दीक उस पेपर का हासिल कर लेना इंसान को हमेशा की जिंदगी में डाल सकता है, पर मसीह का कफारा नहीं। तो यही बात है कि हम जो है मसीह के कफारे की कितनी कदर करते हैं। क्या मसीह का कफारा, मसीह का जान देना हमारे लिए एक छोटी सी बात है? क्या हम जब मसीह के कफारे के बारे में सोचते हैं और उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ज़ाहरी तौर पर हमें जब जाहिर किया जाता है यहाँ पर वो रोटी और वो जो शीरा है, तो जब जाहिर किया जाता है तो क्या हम उस वक्त में सोच रहे होते हैं, अपने दिल को जांच रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी को जांच रहे होते हैं कि क्या मैं बदी में तो नहीं हूँ, क्या मैं उसको पहचान रहा हूँ? या फिर हम भी जो है बस सिर्फ रस्मी तौर पर लेते हैं, या फिर आसपास के लोगों के डर के वजह से भी कभी कभार लोग लेते हैं जी के बस साथ मैं ना लेती तो नाल वाला बंदा की मेरे बारे में सोचेगा। ठीक, ऐसे भी सोचें लोगों की होती हैं, पर हमें मसीह के कफारे को जानने की ज़रूरत है और अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। और देखें, जब ये जाहिर किया जाता है कफारा हमारे सामने, तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्ड जो व्यू है वो ये है कि इसके वसीला से मसीह जो है हमें ताकत बख्शता है। ठीक, मसीह बेशक जिस्मानी तौर पे मौजूद नहीं है, मसीह जिस्मानी तौर पे आसमान पे मौजूद है, पर रूहानी तौर पे वो मौजूद होता है इस वक्त में, और वो हमें तक़वियत बख्शता है। क्या पता बेशक ऐसा ही है कि मसीह हमें उस वक्त में तक़वियत बख्शे कि हम अपने गुनाहों पर काबिज हैं और उनसे जीते। तो मसीह के साथ ये हमारा एक तरह से कम्युनियन भी है, मसीह के साथ हमारी रफाकत भी है। आपस में मिलकर जब हम करते हैं तो ये मिलकर काम होता था कि जब वो जमा होते थे उन्होंने मिलकर इस रोटी और इस शीरे में शरीक होना होता था। ये आपसी मोहब्बत का भी एक वक्त था उन लोगों के लिए।
तो हमारे लिए भी ये आपसी मोहब्बत का एक वक्त है कि हम सब मिलकर एक ही प्याले में से पीते हैं और एक ही रोटी को तोड़ते हैं और मिलकर वो खाते और पीते हैं और मसीह के कफ़ारे का, मसीह के मुर्दों में से जी उठने का इजहार हम करते हैं और इस उम्मीद में हम करते हैं कि जब तक वो ना आए हम ये काम करते रहेंगे। हर बार जब ये रोटी ली जाएगी और ये प्याला लिया जाएगा, हमें किस चीज़ की याद दिलाएगा कि जब तक वो ना आए तब तक हमने ये काम करते रहना है। तो ये पिछली चीज़ों की यादगार नहीं, आने वाले मसीह की उम्मीद भी है कि मसीह एक दिन आएगा और मसीह के साथ हम लोग उठाए जाएंगे। मसीह का कफारा इतना कामिल है कि मेरे गुनाहों को सिर्फ ढांप ही नहीं सकता बल्कि मिटा सकता है। जितना दूर मशरिक से मगरिब है इतना दूर वो मेरे गुनाहों को कर सकता है। मशरिक से मगरिब कितना दूर है? आप मिसाल के तौर पे एक चीज़ इस तरफ फेंके और एक चीज़ इस तरफ फेंके और वो कभी आपस में नहीं मिलेंगी। ये है फासला मशरिक से मगरिब तक का। तो जितना दूर मशरिक से मगरिब है, मसीह के कफारे और मसीह के खून के वसीला से हमारे गुनाह हमसे कर दिए गए दूर। तो ये खुदा का फजल है, ये खुदा की बड़ी बरकत है। तो हमें जो है मसीह के कफारे को बड़ा कामिल और काफ़ी जानना है। हमें लोगों की तरह नहीं बनना जो इसकी बेकदरी करे। जानने की ज़रूरत है कि मसीह ने बड़ी कुर्बानी दी है और लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी है कि हम तक ये तालीम पहुंच सके। हम इस कफारे के लिए सिर्फ ये खुशखबरी के लिए क्या करने के लिए तैयार? सिर्फ यही बात नहीं है कि उनके बस आता था, लोग आते थे और उन्हें बस पकड़ के लेकर सीधा जो है आग में डाल देते थे और उन्हें मार देते थे। सिर्फ यही नहीं था, उन लोगों ने बड़ी कैदें भी काटी, कैद में भी रहे, कैद से छूट सकते थे, मौत से छूट सकते थे। सिर्फ कहना था हाँ ये रोटी जो है ये मसीह का असली बदन है और ये जो प्याले में शीरा है ये मसीह का असली खून है। आज ही छूट जाएंगे, आज ही बच जाएंगे। पर खुशखबरी की कितनी अहमियत थी कि वो लोग इनकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो बात यह है हमारे लिए खुशखबरी की कितनी अहमियत है। या फिर आज भी आप जब इस बात को सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? ओ क्या बड़ी बात है, मसीह ने कफारा ही तो दिया है। पर इन लोगों के लिए, जिन लोगों की हम बात करते हैं, इन लोगों के लिए ये बड़ी अहमियत की चीज़ थी। इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। मसीह के शागिर्दों ने खुदा की खुशखबरी के लिए बहुत जान दी और सबसे बढ़ के मसीह ने अपनी जान दी। तो जब इतना कुछ हुआ है तो हमारी खुशखबरी को लेकर सोच कैसी होनी चाहिए, कैसा बड़ा ख्याल हमारा भी खुशखबरी को लेकर होना चाहिए और कैसी बड़ी जान फशानी होनी चाहिए कि खुशखबरी को जाने, मसीह के काम को जाने। और पता इस तरह पता चलता है हमें खुशखबरी जो है अहम लगती है और उसको जो जानने की जो हमारी कोशिश होती है उससे भी पता चलता है। बेशक उसकी रोशनी में ज़िंदगी गुजारने से भी पता चलता है और उसको जानने की जो हमारी कोशिश है उससे पता चलता है। ठीक, जो चीज़ आपको दिलचस्प लगती है आप उसको ज़्यादा जानना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है ये दिलचस्पी की चीज़, मैं इसको और जानूं, मैं इसको और समझूं। जो चीज़ हमें दिलचस्पी लगती है हम उसको जानना नहीं चाहते। हम बोलते हैं इसका क्या करना है। आप एक मैथ की बुक लेते हैं, आपको दिलचस्पी उसको पढ़ने की नहीं, मैथ की बुक है सामने रखी है, नहीं पढ़नी। खुशखबरी को जानने की आपकी क्या ऐसी कोशिश? इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे मौजूद है, मैसेजेस मौजूद हैं, बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, हमारे भी मौजूद हैं और भी लोगों के मौजूद हैं, कमेंट्रीज हैं, किताबें हैं। आप कितना वक्त लगाते हैं खुदा खुशखबरी को जानने के लिए, खुदा को बेहतर तौर पे जानने के लिए? या फिर आपने भी अपनी ज़िंदगी में सोचा हुआ कि एक बक्सा है, बॉक्स है जिसको मैंने बस टिक करना है कि मेरी ज़िंदगी में बस ये बॉक्स है, मैंने टिक करना है, मैंने अपने आप को बस पढ़ लिया जल्दी से, बाइबल में से होकर जल्दी से मैंने गुजरना है और मैंने बस टिक लगाना है और बस ये मेरे लिए काफ़ी है। पर ज़बूर 1 में क्या लिखा हुआ है कि उसी की शरीयत का उसे दिन रात ख्याल रहता है। ठीक है ना, दिन रात ख्याल
रहता है कि दिन रात वो उसके बारे में सोचता रहता है। इंसान किस चीज़ के बारे में दिन रात सोचता रहता है? जो चीज़ उसे दिलचस्प लगती है, जो चीज़ उसे अच्छी लगती है, जो उसे कीमती लगती है। क्या खुशखबरी आपको कीमती लगती है? आपको क्या उसको जानने की कोशिश है? और जब आप मसीह के बड़े कफ़ारे को देखते हैं तो अपनी ज़िंदगी के ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि आपने मसीह के लिए किया क्या है और क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इन लोगों की तो मिसालें हम लोगों ने देख, उन लोगों ने जो करना था वो कर दिया। हमेशा ऐसे ही नहीं होता कि आपके सर के ऊपर कोई आगे पिस्तौल रखे या फिर बोले सामने आग की भट्टी है, मसीह का इनकार कर वरना के भट्टी। पर हम जो है ऐसे लोग हरगिज़ ना हो जो अपने कामों से खुदा के होने का इनकार करें। ठीक, हमें ऐसे लोग नहीं बनना। हमें खुशखबरी की रोशनी में ज़िंदगी गुजारनी है, जो कि हर रोज़ हम गुजारें और अपने आप को हर रोज़ खुशखबरी याद दिलाएं। और खुशखबरी हमें हर रोज़ दिलचस्प लगती जाए और हम उसकी गहराई को और हम उसकी खूबसूरती को जानते रहेंगे। मसीह ने कितना बड़ा काम हमारे लिए किया है, मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। मैं उस चीज़ को जानूं गहरे तौर पर, क्योंकि मसीह मुझे खूबसूरत लगता है और मसीह का कफ़ारा मुझे दिलचस्प लगता है, मसीह की खुशखबरी मुझे दिलचस्प लगती है। अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करें, क्या मसीह की खुशखबरी आपको दिलचस्प लगती है? क्या आप मसीह की खुशखबरी को जानने की कोशिश करते हैं? क्या आपको वो हर रोज़, ऐसा नहीं है कि हर रोज़ ही एक ही जैसी लगे, कभी कभार हो सकता है इंसान होते हुए हमें वो इतनी अच्छी ना भी लगे, पर हमें अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद करने की ज़रूरत है कि हम खुशखबरी को हर रोज़ खूबसूरत बेहतर जानें, गहराए तौर पे जानें। तो इसके लिए हमारी जो कोशिशें हैं वो हमें ज़ाहिर कर देंगी कि आज तक हमें कितनी खुशखबरी खूबसूरत लगती रही, आज तक जो आपने कोशिशें की। पर अगर नहीं भी इतनी लगती पर लगती थी तो बात यह है कि हमें तौबा करने की ज़रूरत है और खुशखबरी को गहरे तौर पे जानने की ज़रूरत है और मसीह के जलाल के लिए जीने की कोशिश करने की ज़रूरत है और अपने आप को आजमाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम इस रोटी और इस प्याले में शरीक हों। अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, मसीह के कफ़ारे के बारे में सोचें। आपको हफ्ते पहले इसीलिए बताया जाता है ताकि आप उस कफ़ारे के ऊपर गौर कर सकें, उसके बारे में सोच सकें। क्या आप सोचते हैं? क्या आप जानने की कोशिश करते हैं? अपनी ज़िंदगी के ऊपर हर एक पर गौर कर सकते हैं। खुदा इस्लाम के वसीला से आपको बरकत। आमीन। मेरी दरख्वास्त